قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا مشترکہ اجلاس، آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی گئی۔ بل کل دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ان کیمرہ اجلاس کے دوران نون لیگی اراکین کی لندن میں اعلیٰ قیادت سے بھی مشاورت۔ قومی اسمبلی بل پیش کرنے کے بعد دفاعی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا تھا۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس فیصلے پہ آن بورڈ نہیں لیا تھا۔ ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا۔ ترمیمی بل پر حکومت کو آخر کیا جلدی تھی؟ ہمیں آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر تھا، ہمارے بغیر بھی بل پاس کروایا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کی میڈیا ٹاک، کہا نیب ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے، نیب آرڈیننس کی حمایت نہیں کرے گے۔ انشاءاللہ عزیز یہ آج کمیٹی میں بھی جائے گا اور انشاءاللہ کل پاس بھی ہو جائے گا۔ بل پاس کرانے میں کوئی جلد بازی نہیں کی گئی، تمام جماعتوں نے بل کو درست قرار دیا جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر قانون فروغ نسیم کی گفتگو، وفاقی وزیر اعظم سواتی بولے تینوں بلز متفقہ طور پر منظور کیے گئے ہیں، کسی جماعت نے بلز کی مخالفت کی نہ ہی کوئی ترامیم دی۔ سب نے یونانی مسئلہ جو ہے اس کو آنر کیا اور میں سب کو جو ہے پوری قوم کو جو ہے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج اس پارلیمنٹ کو ہم نے مضبوط بنانا ہے اور ایک جمہوری پروسیس کا آغاز ہوا ہے اور جمہوری پروسیس سے ہی انشاءاللہ ان امینڈمنٹس کو منظور کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے بردباری کا مظاہرہ کیا، آئین ملکی دفاع کی ذمہ داری وزیر اعظم کو دیتا ہے۔ فردوس اشرقوان کی میڈیا سے گفتگو، کہتی ہے پارلیمان کی بالادستی ہی سب سے اہم ہے، اصل مقصد پاکستان کے مخالفین کو ناکام بنانا ہے۔ آج ایک جمہوری عمل کا آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل کنسنسس سے پورے اتفاق رائے سے یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو کنسنسس ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا۔ احتساب کا ایک نیا جو چیپٹر ہے، جو نیا قانون ہے، یا آپ سمجھیے کہ جو نئے چیکس اینڈ بیلنسز ہم نے انٹروڈیوس کرانے ہیں، اس میں اپوزیشن کی بھی جو رائے ہے وہ لی جائے گی۔ آرمی ترمیمی ایکٹ پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، کل یہ بل منظور کر لیا جائے گا۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا امید ہے اسی طرح چیف الیکشن کمشنر اور نیب قانون پر بھی سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو جائے گا۔ فلاحی ریاست بنانا ہے، سرمایہ کاری بڑھانی ہے، صنعتوں کو فروغ دینا ہے، سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل زون کا سنگ بنیاد رکھنے بعد تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب، کہا چین کی ترقی سے پوری دنیا خوفزدہ ہے، ہمیں چین کی ترقی سے سیکھنا ہوگا، سی پیک سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ چیف سیکرٹری صاحب، اب تو آپ کے افسران کو کام نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ملے گا، بیوروکریسی کی مشکلات دور کر دی، وزیر اعظم کا خطاب، کہا ماضی کی حکومتوں نے معاشی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، سیاستدان اگر غلط کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاست غلط ہے۔ سی پیک کے تحت پہلا اکنامک زون فیصل آباد میں بنایا، جس میں تھانہ، اسپتال سمیت دیگر سہولیات ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کے مختلف شہروں میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز نہیں، حلقوں میں نہیں جا سکتے، حکومتی پروگرامز میں ارکان اسمبلی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں اراکین کے شکوے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا بیوروکریٹس اور کاروباری طبقے کو نیب سے تحفظات کی وجہ سے ملک کی ترقی رک گئی تھی، اس سال تمام گلے شکوے ختم ہوں گے۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے مشترکہ اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری اور توسیع سے متعلق
तरमीमी बिल्स मंजूर कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि हमने बिल पास कराने में कोई जल्दबाजी नहीं की। बिल पर किसी जमात ने कोई तरमीम पेश नहीं की। तमाम जमातों ने बिल को दुरुस्त करार दिया है, जिस पर सब जमातों के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद से नवीद अकबर रिपोर्ट करेंगे। सेनेट की दिफाई कमेटी का मुश्तरका इजलास जमील अहमद खां और सेनेटर वलीद इकबाल की मुश्तरका सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर पार्लिमानी अमूर समेत कई अराकीन शरीक हुए। इजलास में बरी, बहरी व फदाई अफवाज के एक्ट्स में तरमीम के बिल पर गौर किया गया और उनकी मंजूरी दी गई। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम और वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति का कहना था कि तीनों बिल इत्तफाक राय से मंजूर हुए। किसी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की और न कोई तरमीम दी। कमेटी में भी जाएगा और इंशाल्लाह कल पास भी हो जाएगा। सब ने यूनानिमसली जो है उसको ऑनर किया और मैं सबको जो है पूरी कौम को जो है आपको मुबारकबाद देता हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन वलीद इकबाल का कहना था कि दिफाई कमेटी ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक तरमीम की मंजूरी दे दी है। कोई तरमीम नहीं आई। कुछ अराकीन ने वजाहत मांगी थी, उनको वजीर कानून और वजीर दिफा ने ब्रीफ किया। यूनानिमसली नेशनल असेंबली की कमेटी ने इसको यूनानिमसली अप्रूव किया और वो ब्रीफ कर रहे हैं। इजलास के दौरान एक बार मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले कमेटी अराकीन अपनी क़यादत से मुशावरत के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर गए। बाद दोबारा इजलास में लौट आए। वज़ीर दिफा परवेज खटक भी इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर चैम्बर में गए और ख्वाजा मोहम्मद आसफ समेत दीगर लीगी क़यादत से मुलाकात की। अब तीनों तरामीमी बिल कल कौमी असम्बली में मंजूर के लिए पेश की जाएंगे। नवीद अकबर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। इससे कबल आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में पेश किया गया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी एक्ट अलग अलग पेश किए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में पेश। वक्फे सवालात मुअत्तल होने के बाद वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बिल पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर-ए-सदारत हुआ। 13 निकाती एजेंडे में आर्मी तरमीमी एक्ट शामिल नहीं था, ताहम एक्ट को सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी तरमीमी एक्ट 2020, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी एक्ट 2020 और पाकिस्तान बहरिया तरमीमी एक्ट 2020 अलग अलग पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अहम खबर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 4 ज़ेरे हिरासत अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। स्पीकर ने शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल और खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटरी से अभी कुछ देर पहले एक एलामिया जारी किया गया है। उसमें तस्दीक कर दी गई है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली के 4 असीम मेंबर जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक शामिल है। उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरी के एलामिया के मुताबिक प्रोडक्शन आर्डर जो है वो कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 के कायदा 108 के तहत जारी किए हैं और ये जो प्रोडक्शन आर्डर है इनकी काफी मुतलका इदारों को साल कर दी गई है। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि मुतलका इदारों से कहा गया है कि कल हर सूरत इन चारों अरकान को जो है वहाँ पे असम्बली में लाया जाए, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। आर्मी एक्ट के हवाले से तरमीम जो उसमें की जा रही है तो उसमें चारों की हाजिरी जरूरी है और ताकि वो अपना वोट डाल सके और इसकी हिमायत कर सके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले ही आर्मी एक्ट में तरमीम की हिमायत कर चुकी है। आज को जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट लीडर ख्वाजा आसफ ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर खड़े होकर स्पीकर से मुतालबा किया था कि इन चारों अरकान के कौमी असम्बली जो है उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए। स्पीकर असद कैसर ने कल होने वाले इजलास के हवाले से 4 ज़ेरे हिरासत अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। नवीद अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कानून साजी का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी तबके को नैब से तहफ़्फ़ुज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुल्क की तरक्की रुक गई थी। नैब ऑर्डिनेंस पर भी अपोजिशन से मुशावरत जारी है।
तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इत्तेहादी जमातों के अरकान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अदालती फैसले की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कानून साजी का हुक्म दिया था। मुद्दत मुलाजमत में तोसी वजीर आजम की सवाबदीद है। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नैब ऑर्डिनेंस के खदुखाल पर भी ब्रीफिंग दी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मुल्की मफाद में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 लाना पड़ा। ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी तबके को नैब से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात थे। इन तहफ्फुज़ात की वजह से मुल्क की तरक्की रुक गई थी। अपोजिशन के साथ हुकूमती कमेटी नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत कर रही है। इजलास के दौरान अरकान ने हल्के के लिए फंड्स और तरक्याती मंसूबे से मुतल्लिक शिकवे भी किए। वजीर आजम ने कहा कि इंशाअल्लाह इस साल तरक्याती मंसूबों के हवाले से अरकान के शिकवे खत्म हो जाएंगे। उधर पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की तरह तरमीम को भी मुतनाज़ा बना रही है। पार्लियामेंट की इज्जत नहीं होगी तो किसी की इज्जत नहीं रहेगी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तरमीमी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत पर वादे कर दिया है कि हमारी हमायत के लिए पार्लियामानी तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा। अपोजिशन में हो या हुकूमत में, अगर पार्लियामेंट की इज्जत नहीं होगी तो किसी की इज्जत नहीं रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको सपोर्ट चाहिए तो उनको पार्लियामानी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिक्टेटर का वज़ा करदा काला कानून करार देते हुए कहा कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में ब्यूरोक्रेट्स को छूट दे दी है। जब हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है जिससे उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, बिजनेसेस को नैब के एम्बेड से आउट रखा है, तो मतलब हमारा वजीर आज़म और हुकूमत ये मान रही है कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चलती। इससे कबल पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से शिकवा करते हुए कहा कि बिल की गैर मशरूत हिमायत नहीं की जानी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर को दीगर अपोजिशन जमातों से मुशावरत और इस मौका पर ईवान में मौजूद होना चाहिए था। नवीद अकबर, आई न्यूज़, इस्लामाबाद।